हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज़ माजिद रेहान साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से आज की इस बाबरकत महफिल का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, good afternoon. I, Hafsa Ali Jatti, daughter of Boor Ali Jatti, am deeply honored to stand before you today and to inaugurate the Jatti Overseas Educational Consultancy. Thank you for gracing us with your presence. Our mission at Jatti Group is clear: to guide students toward the dreamed international education. Today we pledge to uphold the highest standards of
integrity, and professionalism. In addition to consultancy services, we will provide top-quality training, international exams like IELTS, PTE, and TOEFL. Proficiency in English is crucial for success abroad, and we're committed to helping students excel. Thank you for being part of this momentous occasion. Together, let's empower students to become global citizens who will make a better tomorrow. Thank you. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम। तो मैं थोड़ा जूडी ग्रुप के बारे में आप लोग को बता देता हूं कि हम लोग कैसे वर्क करेंगे यहां पर। सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं। एजुकेशन इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ सक्सेसफुल करियर, बोथ ऑफ विच टुगेदर देन फॉर्म द पिलर्स that uphold the basic needs of a leading gracious life. Higher education system is quite unique in its mission and structure. I feel confident that you can find an opportunity overseas that will offer you a quality education experience. It is the fusion of these values that led to the genesis of the Judy. Still running around. So, नहीं चल रहा भैया। Hello. Okay. So it is the fusion. नहीं चल रहा भाई। Hello. It is the fusion of these values that led to the genesis of the Judy Overseas Educational Consultants. So, as the employee of this organization, I am fortunate to advise for overseas education with an overall experience of more than 20 years in the student service in the field of international education. The Judy Group started the services with around the world expertise to guide the student aspirants with careful planning, equipped with up-to-date research inputs, which will help to choose right destination, right program, right career. From this expanded our services to the other countries like UK, Canada, Australia, New Zealand, USA, Germany, and many more countries to come in the list. So basic plan हम लोग का ये होगा कि जो students है, जो aspirants है, जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं abroad for their higher education, just like PG, post graduation and foundation courses, तो उनको एक सही pathway नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये चीज शुरू करना चाहते हैं यहाँ पर कि एक बच्चे को सही गाइडेंस हो और सही कोर्स अवेलेबल हो उन लोग के पास चूज करने के लिए और सही pathway मिले। So we shall assure you at the Judy Group, every student's dream will come true into their careers abroad. Being an education advisor, end-to-end services are being provided to the fullest satisfaction of the students, such as comprehensive admission counseling, career pathway counseling, pre-application process, guidance in the applications and documentation, visa counseling, air ticketing, etc. So you will be getting all these services at one stop. मतलब यहाँ पर हम लोग immigration, visa services, student और आपको बहुत सारे सर्विसेज मतलब एयर टिकटिंग, तो ये सब वन स्टॉप पे मिलेंगे आपको ओनली एट जूडी ग्रुप. We are also keen in extending our services in the field of recruitment by providing professional manpower across the globe. So at the Judy Overseas Educational Consultant, we advise and counsel students, which are an ultimate answer for building their career abroad. The website is made for you to understand better about the Judy Group and take fullest advantage of your career building abroad through higher education. You may please feel free to write us to or call us for the best of best education overseas through us. और एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो चालू कर रहे हैं दैट इज IELTS, TOEFL, ये इंग्लिश लैंग्वेजेस है विच आर वेल नोन इन अदर कंट्रीज. मतलब ये लैंग्वेजेस आपको सीख कर कुछ अदर कंट्रीज में जाना पड़ता है, तो इसके भी क्लासेस इंशाल्लाह ऑनलाइन चालू होंगे हमारे पास. और अगर किसी को फिजिकली चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे. TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, ये कुछ कंट्रीज के रिक्वायरमेंट है. तो औरंगाबाद में इसकी कुछ कमी होने के कारण बच्चे जो है पूना जाके करते हैं ये कोर्सेस, पूना या बॉम्बे, तो उसके सर्विसेज भी इंशाल्लाह हमारे पास चालू होंगे. ओके, थैंक यू. Basically,
जहां ओवरसीज में एजुकेशन की बात आती है या किसी और मुल्क में तालीम हासिल करने की बात आती है, हर शख्स ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे की तालीम फॉरेन कंट्री से करवाऊं, उसे अमेरिका से पढ़ाऊं, उसे जर्मनी से पढ़ाऊं, उसे लंदन से पढ़ाऊं। गुज़िश्ता 20 साल से जनाब गौहर अली जद्दी साहब लंदन में वो खुद वहां सेटल है, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट वीजा पे लंदन जाते हैं और वहां पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। तो गौहर साहब वहां पे इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, इंडियन नेशनल जितने भी है उन लोग की एक एसोसिएशन है, और औरंगाबाद बोलिए, हैदराबाद बोलिए, मराठवाड़ा से जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे एजुकेशन हासिल करने के लिए या आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, और अगर वो वहां कोई मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, गौहर जद्दी साहब आप लोगों को बताएंगे वो किस तरह के प्रॉब्लम्स वहां होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट जाता है वहां पे स्टूडेंट वीजा पे और उसे वहां पे पार्ट टाइम जॉब करना होता है, तो कई बार होता यह है कि वो जिस स्ट्रीम में उसने तालीम हासिल की है उस स्ट्रीम के मास्टर्स में उसे एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन किसी और स्ट्रीम में वो एडमिशन ले लेता है गलती से। एक सबसे अहम चीज है कि जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन होते थे वो कॉलेजेस के एडमिशंस वर्ल्ड वाइड बंद हो चुके हैं, अभी सिर्फ यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस होते हैं। तो ये एजेंट्स की वजह से या जो लोग अपने छोटे फायदों के लिए यहाँ पे लोगों को मिसगाइड करते हैं, अब यहाँ से आगे उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट ना हो, इस मंशे से, इस इंटेंशन से जद्दी ग्रुप ने, औरंगाबाद ने ये ओवरसीज एजुकेशन और ओवरसीज में आप जॉब हासिल करने के लिए अगर जाना चाहते हैं, अगर आप वहां पे पीआर हासिल करना चाहते हैं, अगर आप वहां पे रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप वहां पे नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो हर तरह की सर्विसेज जद्दी ग्रुप आपको प्रोवाइड करने वाला है, दैट ऑल्सो ऑन 0% चार्जेस। ये लोग स्टूडेंट से कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले हैं। इन लोगों के वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज है उन तमाम यूनिवर्सिटीज के साथ ऑलरेडी टाइप हो चुका है। जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जैसे हमारे ने अभी बात की, उन लैंग्वेजेस को सीखे बगैर आप जर्मनी है, अमेरिका है, लंदन है, वहां मुश्किल हो जाता है जाना। उन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग भी और मराठवाड़ा के या औरंगाबाद के बच्चों को यहां दी जाने वाली है। उसमें से इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एक होता है, IELTS जिसे आमतौर पे कहा जाता है, या TOEFL जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, GRE है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, GMAT है द ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, SAT है स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, और PTE है पर्शियन। बेसिकली जहां ओवरसीज में एजुकेशन की बात आती है या किसी और मुल्क में तालीम हासिल करने की बात आती है, हर शख्स ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे की तालीम फॉरेन कंट्री से करवाऊं, उसे अमेरिका से पढ़ाऊं, उसे जर्मनी से पढ़ाऊं, उसे लंदन से पढ़ाऊं। गुज़िश्ता 20 साल से जनाब गौहर अली जद्दी साहब लंदन में वो खुद वहां सेटल है, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट वीजा पे लंदन जाते हैं और वहां पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। तो गौहर साहब वहां पे इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, इंडियन नेशनल जितने भी है उन लोग की एक एसोसिएशन है, और औरंगाबाद बोलिए, हैदराबाद बोलिए, मराठवाड़ा से जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे एजुकेशन हासिल करने के लिए या आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, और अगर वो वहां कोई मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, गौहर जद्दी साहब आप लोगों को बताएंगे वो किस तरह के प्रॉब्लम्स वहां होते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट जाता है वहां पे स्टूडेंट वीजा पे और उसे वहां पे पार्ट टाइम जॉब करना होता है, तो कई बार होता यह है कि वो जिस स्ट्रीम में उसने तालीम हासिल की है उस स्ट्रीम के मास्टर्स में उसे एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन किसी और स्ट्रीम में वो एडमिशन ले लेता है गलती से। एक सबसे अहम चीज है कि जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन होते थे वो कॉलेजेस के एडमिशंस वर्ल्ड वाइड बंद हो चुके हैं, अभी सिर्फ यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस होते हैं। तो ये एजेंट्स की वजह से या जो लोग अपने छोटे फायदों के लिए यहाँ पे लोगों को मिसगाइड करते हैं, अब यहाँ से आगे उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट ना हो, इस मंशे से, इस इंटेंशन से जद्दी ग्रुप ने, औरंगाबाद ने ये ओवरसीज एजुकेशन और ओवरसीज में आप जॉब हासिल करने के लिए अगर जाना चाहते हैं, अगर आप वहां पे पीआर हासिल करना चाहते हैं, अगर आप वहां पे रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप वहां पे नौकरी के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो हर तरह की सर्विसेज जद्दी ग्रुप आपको प्रोवाइड करने वाला है, दैट ऑल्सो ऑन
0% चार्जेस। ये लोग स्टूडेंट से कुछ भी चार्ज नहीं करने वाले हैं। इन लोगों के वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज के साथ ऑलरेडी टाइप हो चुका है। जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जैसे हमारे ने अभी बात की, उन लैंग्वेजेस को सीखे बगैर आप जर्मनी है, अमेरिका है, लंदन है, वहां मुश्किल हो जाता है जाना। उन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग भी और मराठवाड़ा के या औरंगाबाद के बच्चों को यहाँ दी जाने वाली है। उसमें से इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एक होता है, IELTS जिसे आमतौर पर कहा जाता है, या TOEFL जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, GRE है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, GMAT है, द ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, SAT है, स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा गौर साहब को, गौर भाई को, कि जो एक मैसेज और जो एक हम प्लान डिस्कस किया करते थे जब मैं करने गया था, तो आज वो मुकम्मल हो रहा है और आज उसकी शुरुआत हो रही है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि गौर भाई के साथ कैसा था। मैं यहाँ से पिछले 2019-20 में 2021 में मैं मेरे मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए लंदन गया था। तो वो टाइम पर मुझे कोई आइडिया था नहीं कि भाई वहाँ पर कैसे हम वहाँ पर मैनेज करेंगे, जाएंगे, कैसे समझेंगे क्या होता है, बात कैसे करेंगे, किससे बात करेंगे। तो बस आपको एग्जाम्पल दे दूं कि पहले ही दिन में गौर भाई ने मेरी जिंदगी इतनी आसान कर दी थी। और मुझे लगा क्योंकि मैं MP का बेटा हूँ तो शायद इसीलिए मेरे लिए कर रहे हैं, पर गौर भाई ये हर बच्चा जो औरंगाबाद, हैदराबाद, मराठवाड़ा से आने वाला होता है उनके लिए ये एफर्ट लेते हैं। तो शुरुआत इससे करूंगा कि जब हम हीथ्रो के एयरपोर्ट पर बढ़ते हैं, लंदन का जो एयरपोर्ट है वो आपको मैं समझाऊं। अगर हम यहाँ पर आज निराला बाजार में है तो हीथ्रो का एयरपोर्ट गंगापुर के आगे, मतलब कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए। तो कोई नगर में इतना दूर ना जाए गाड़ी से पिक करने के लिए। और गाँव में रात के 3 बजे मुझे खुद पर्सनली पिकअप करने आए थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे लगा कि क्योंकि मैं MP का बेटा हूँ तो शायद गौर में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं। उसी के 2 दिन के बाद गौर ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम फिर एयरपोर्ट की तरफ निकले। तो वर्कल गेट का एक बच्चा आ रहा था, उसको हम पिक करके लेकर आए। क्या नाम है उसका, बॉस जिसको बोलते हैं, फैसल। वर्कल गेट का रहने वाला बच्चा, वो पढ़ने आया था, वो भी लॉस्ट थे तो उनको लेने आए थे। फिर वहां पे अपने कैसर खान साहब के बेटे तबरेज थे, वो भी एयरपोर्ट पर आए थे, उनके लिए भी गौर में गए थे। और वो सिर्फ ये तो एक चीज होती है ना कि जब आप पहली बार कदम रखते हैं नए देश में, तो जो पहला जो आपका नर्वस मोमेंट होता है उसको गौर में इतना अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं कि फिर आपका लंदन का, UK का एक्सपीरियंस उन्होंने इतना घर के जैसा बना दिया था। बस आपका हर हफ्ता गौर में पूरे औरंगाबादियों को, हैदराबादियों को अपने घर पर बुलाकर दावत रखते हैं। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बूटी लाइन में नहीं है, रोशन गेट में नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक मोहल्ला वहां पे पूरा औरंगाबादियों में यही बसा के रखा है। आप कभी भी उनकी दावतों में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अब निकल के आपको लंदन घूमना है, आपको लगेगा चलिए अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं। पूरा घर का खाना वहां पर मिलता है। मुझे याद है मेरे 4 महीने 5 महीने के बाद मैं एक दिन मैं बोल रहा था कि घर के खाने की याद आ रही थी, तो गौर मैं घर में गया वापस एक दिन, तो उन्होंने मुझे वहां पर मिर्ची का सालन और खिचड़ी और गोश्त का सालन और बादाम इतनी मेहनत करते हैं। मैं गौर भाई को तो मैं बहुत सलाम करता हूँ, पर उनकी पूरी फैमिली को, उनकी वाइफ को स्पेशली, जो इनकी पूरे मोहल्ले को उठाकर गौर भाई ले आते हैं सबके लिए कि उनकी खिदमत की है। तो भाभी है जो सबको संभालती है। और रही बात एजुकेशन की और अपॉर्चुनिटीज की, क्योंकि आज बहुत पहले के जमाने में कम्युनिकेशन बहुत कम हुआ करता था। अगर कोई बच्चा लंदन चला गया तो उससे फोन पे बात करने के लिए आपको 26 रुपए 1 रुपए मिनट के हिसाब से बात करना पड़ता था, इसलिए बात कम होती थी। ऐसा लगता था कि रिश्तेदार दूर चला गया है। और आज पूरी दुनिया वाईफाई पे चल रही है। मैं तकरीबन 1 साल था घर से दूर, पर कभी भी ऐसा लगा नहीं कि हम दूर थे, क्योंकि फेसटाइम, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल के ऊपर आप कभी भी कुछ भी रहा आप बात कर सकते हैं। बाज़ाब्ता यूट्यूबर्स जो हमारी टीम है यहाँ पर, आप लोगों के सबसे ज्यादा व्यूज अगर कहीं देखे जाते हैं तो वो लंदन में देखे जाते हैं। पूरे औरंगाबाद का जो आपके शहर का पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जो भी डेवलपमेंट है शहर के, वो लंदन के औरंगाबादी बैठ कर देखते हैं। और फिर बैठ के वहां पर चर्चा चलती है कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया।
तो ऐसा जितने लोग जितने बच्चे यहाँ पर जाना चाहते हैं, मैं बहुत से औरंगाबाद के बच्चे और बच्चों को पहचानता हूँ जिनकी चाह है कि वो लंदन जाके पढ़े, और उनके माँ बाप उनको जाने नहीं दे रहे हैं कि बच्चा घर से दूर हो जाएगा नहीं। तो ये गारंटी मैं गौर बैंक की सर्विसेज के अगर आप थ्रू जाएंगे तो ये लिटरली अगर आप एक घर से दूसरे घर में भेज रहे हैं वैसे ही समझिएगा। दूसरी चीज ये है कि गौहर भाई सिर्फ आपको एडवाइस नहीं देते, कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि एडवाइस देना, और ये खुद ग्राउंड पे उतर कर आपको ले जाएंगे, आपको बताएंगे ये ऐसा करो, ये वैसा करो, ये ऐसा करो। मैं खुद पर्सनली कम से कम 10 से 12 बच्चों से पर्सनली मिल चुका हूँ जिनके आज घर में लंदन वाला चूल्हा अगर जल रहा है तो वो इनकी गाइडेंस की वजह से। एंड इनकी स्टोरी ऐसी है कि गौहर भाई कोई प्रिविलेज के साथ लंदन नहीं गए थे, कोई उनके पास ज्यादा कोई फाइनेंशियल बैकिंग थी नहीं जब वो लंदन गए थे। मुझे जितनी कहानी उनकी पता है, मैं खुद इनके एक बहुत साथी हैं रिजवान भाई बोलकर, उन्होंने मुझे कौन सा स्टेशन है गौहर भाई, स्टैटफोर्ड स्टेशन है, बहुत बड़ा एक वहाँ का लोकल एक स्टेशन है वहाँ का। तो वहाँ के स्टेशन पर एक किराने की दुकान थी, तो वहाँ पर गौहर भाई रोज सुबह 5 बजे उठकर वहाँ पर जाते थे, और उस दुकान का सेल गौहर भाई अपनी तकनीकों से अपने दिमाग से उन्होंने उस सेल को डबल कर दिया। तो वो दुकान वाला 20 साल के बाद भी अगर गौहर भाई से कुछ बोले तो वो मान लेता है। तो औरंगाबाद के जितने बच्चे आते हैं गौहर भाई पहले टेस्ट कराने के लिए वो दुकान में भेजते हैं उसको कि देखते हैं कि ये डबल करता है कि नहीं। अगर डबल नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट बोलते बेटा तो वापस चले जाओ औरंगाबाद, तेरा यहाँ कुछ होने नहीं वाला। क्योंकि लंदन पहुंचना शायद आप आसान हो चुका है, पर लंदन में टिकना आसान नहीं रहा है। वहां पर आप शायद पढ़ लें 1 साल, और उसके बाद अगर आपको नौकरी चाहिए तो वो बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से गवर्नमेंट भाई ने पूरे मराठवाड़ा हैदराबाद के पूरे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो कम से कम जो 30 से 40 जो उनके अंडर में बच्चे काम कर रहे थे, ये 5-5 हजार पाउंड 4-4 हजार पाउंड की सैलरी कमा रहे थे। इंडियन रुपीस के हिसाब से 4.5 लाख 5 लाख रुपए की सैलरी पर महीने, ये सिर्फ गौहर भाई के थ्रू बच्चों को जाती है। तो ये सब इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है 20 साल की मेहनत में। मुझे याद है कि हम 1.5 साल पहले ही बैठ के बात कर रहे थे कि ये अगर आप माँ बाप को कॉन्फिडेंस दिला सके अपनी तरफ से कि आपका बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं देखूंगा, तो वो बहुत सारे माँ बाप उसमें एग्री कर लेंगे। एंड क्या है, अगर हमारे शहर के बच्चे अगर वहां पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शहर की तरक्की होगी, शहर का ही नाम बढ़ेगा। लंदन में मेरे रहने में हमने औरंगाबाद एसोसिएशन इन लंदन हमने एस्टेब्लिश की थी, जिसके प्रेसिडेंट भी गौहर भाई थे। कल को कोई लंदन में स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई स्कैम हो गया हो, कोई चोरी हो गई हो, कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया हो, तो गौहर भाई की सदारत में वो बच्चे के पूरे मसले मसाइल पूरे सॉल्व किए जाते हैं। मैंने तो उनको कहा था कि पता करिए अगर लंदन में मजलिस रजिस्टर होती है तो वहां से इलेक्शन भी लगेगी गौहर भाई। पर हालांकि औरंगाबादियों का एक बहुत यूनिक उनके अंदर एक फीचर है कि वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं उनका दिल हमेशा औरंगाबाद में ही लगा रहता है। तो कल को अगर हमारे वालिद साहब के खिलाफ कोई बोले तो गौहर भाई लंदन से गाली देते हैं गुस्से में आकर, ये ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, ये कैसे कर दिया। पर ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस था उसमें गौहर भाई को इन्वॉल्वमेंट था नहीं, और जब हम घर से दूर अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो हमें घर की बहुत याद आती है। तो मैं गौहर भाई को हर 1 महीना 2 महीने कॉल किया करता। और दीगर मेहमानों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी मोदी फैमिली को, तो उन्होंने जिस सिलसिले का आगाज किया है तो बहुत काबिल मुबारकबाद। मैं बताऊं कि जिस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में मेरी तालीम था, जहाँ मेरी तारीफ 4 साल हुई है, तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि गाइडेंस का क्या मतलब।
रहनुमाई का क्या मतलब? तो हमने कहा कि रहनुमाई के दो मफहूम हैं। एक है रास्ता बताना और दूसरा है मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। तो इस वक्त पूरी दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो है जो दूर से रास्ता बताए देते हैं। इस शब्द में चलने वालों को बड़ी दुश्वारी होती है तो मैं दाईं तरफ मुड़ूं या बाईं तरफ। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो, ऐसी कंपनी हो, ऐसा ग्रुप हो जो मंजिल तक पहुंचा दे, बल्कि मंजिल तक पहुंचाने के बाद भी वो मुसलसल रास्ते में रहे, तो ऐसा ग्रुप काबिल मुबारकबाद होता है। और खास तौर पर इन्होंने तालीम का और तालीम की राह का इंतखाब किया। कुरान पाक की जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई उसका आगाज था इक़रा से, पढ़ो। अंदाज लगाइए कि आज से 1500 साल पहले, जबकि पूरी दुनिया में जहालत आम थी और मक्का मुकर्रमा में और अतराफ के शहरों में चंद गिने चुने अफराद थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नबी उम्मी पर जो आयत नाज़िल फरमाई उसका आगाज इक़रा से किया और उसका इख्तिताम कलम से किया। गोया कि अल्लाह के रसूल ने इस बात का ऐलान किया कि मेरी बेशक के बाद, मेरी नबूवत के बाद जो जमाना आ रहा है वो पढ़ने और लिखने का है। जिसको पढ़ना आएगा, जिसके हाथ में कलम होगा, वही कौम तरक्की करेगी। अल्लाह तआला के यहाँ मेयार मेहनत है, मेयार जांफशानी है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे। यहाँ पर किसी मजहब का जिक्र नहीं, इंसान का। तो जो इंसान मेहनत करेगा अल्लाह तआला उस मेहनत का नतीजा उसे देगा। वह नसाल वगैरह, और अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम उसकी उस मेहनत की कद्र करेंगे, वही जाफा और हम उसका भरपूर करता है। इस वक्त जो दुनिया तरक्की कर रही है कलम की बदौलत और इल्म की बदौलत। जवाहर जद्दी साहब ने और अजहर जद्दी साहब ने और उनके पूरे ग्रुप ने जिस सिलसिले का आगाज किया है वो न सिर्फ शहर औरंगाबाद के लिए बल्कि सूबे महाराष्ट्र के लिए, आगरा के लिए, पूरे इलाके के लिए एक फायदे नहीं। मैं बताऊं तो मेरा बेटा MBBS के लिए मिस्र जा रहा था तो तकरीबन 1 साल तक मुझे इस सिलसिले में परेशानी हुई। 1 साल के बाद सुराग लगा और 1 साल के बाद मेरा बेटा मिस्र गया, इजिप्ट, और इस साल वो फर्जी हो गए। कितनी दुश्वारी हुई। अगर ये गुरु 3 साल पहले अगर हमें ये सारी चीजें की होती तो मेरे बच्चे का कम से कम 1 साल बच्चा और जो पैसा जाया हुआ उसका वजूद करना नहीं चाहता। ये भी काबिल मुबारकबाद है इस एतबार से भी कि इन्होंने ये तय कर रखा है कि मैं किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं लूंगा। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बल्कि इस कहने में कोई हर्ज नहीं कि आमतौर पर अच्छे निशानात और अच्छे नंबरात उन तलबा को आते हैं जो गरीब और मुतवस्सित घराने के होते हैं। मालदार घराने के लड़कों को मोबाइल और दूसरी चीजों से कम फुर्सत मिलती है, इल्ला माशाअल्लाह बिलाल जैसे लोग होंगे। लेकिन अक्सर मालदार तबके के लड़के तालीमी मैदान में आगे नहीं जाते। गरीब तलबा, मुझे याद है कि मैं एक दफा मस्जिद बेगम जाने में नमाज पढ़ रहा था। एक शख्स, मैं अक्सर वहां नमाज पढ़ता हूँ मगरिब की नमाज, वहां तालीम वहां मुझसे तैयारी मुशक्कत होगी, लेकिन अजनबी मुझे मालूम हुआ, मोहल्ले का नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि आप पढ़ने कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर में हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ और मेरी माँ घर में बर्तन साफ है, इतना गरीब हूँ। तकरीबन 3 या 4 लाख लड़कों ने जो एग्जाम दिया था उसमें 20 या 22 लड़कों का इंतखाब हुआ, मेरा भी इंतखाब हुआ और उसकी वजह से मैं यहाँ तालीम हासिल करने के काबिल हूँ। तो दर्जा मालदार हो या मुतवस्सित घराने को हो या गरीब घराने को हो, इंशाअल्लाह आपके जरिए रहनुमाई हासिल करेंगे
और चूंकि गौहर साहब अपना 20 साल से यूके में है और वहाँ का तजुर्बा है, मौसम का भी तजुर्बा है, तालीम का भी तजुर्बा है, वहाँ की तहजीब का, वहाँ की ज़बान का, वहाँ की सकाफत का तजुर्बा है, तो अपने उस तजुर्बे से उन तलबा के लिए वालिदैन की तरह शफीक साबित हुए। तो वालिदैन को फिक्र होती है कि मेरा बच्चा वहाँ बच्चा जाने के बाद किस तरह रहेगा, किस खूबसूरत खाना खाएगा, वहाँ की आबोहवा क्या है, कौन सा खाना कहाँ मिलेगा। तो इन सारे मसलों को इंशाअल्लाह यहाँ करेंगे, इन्होंने इसका वादा किया है और आज हमें मसरत हो रही है और मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस सिलसिले का आपने आगाज किया है उसको आप और बढ़ाइए। और इंग्लैंड के अलावा चंद ममालिक आपने तस्करा किया है, उसके अलावा भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक यहाँ तालीम हो सकती है और जहाँ हमारे बच्चे जा सकते हैं, इसलिए कि इस वक्त हिंदुस्तान के बच्चे पूरी दुनिया में और खासतौर पर IT की फील्ड में पूरी दुनिया में मशहूर हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस गलूब को जो जद्दी गलूब है और इससे मैं बरसों से वाकिफ हूँ। असल जद्दी साहब सामने बैठे हुए तकरीबन 30-35 साल से मेरी पुरानी ताल्लुकात हैं। उन्होंने जब मुझसे तस्करा किया तो मुझे बहुत मसरत थी और उन्होंने जब ये कहा हुक्म दिया तो मैं आऊँ, तो मैंने कहा तो मैं आऊँगा और आप मुबारकबाद दूंगा और आपकी हिम्मत अफजाई भी करूंगा कि जिस मैदान में आपने कदम रखा है उसकी न सिर्फ शहर के तलबा को, वालिदैन को, बल्कि इस पूरे इलाके को उसकी जरूरत है। मैं दोबारा आप तमाम हजरात का जिनका ताल्लुक जैसी जरूर से है दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और मुझसे इस सिलसिले में जो भी होगा और जो खिदमत भी आप देना चाहेंगे मैं उसके लिए पेशगी तैयार हूँ। तो आपको दावाना मैच पर बैठे मोजिस मेहमान जनाब इम्तियाज अली साहब और दीगर हजरात यहाँ पर आए हुए शोक मेहमान, मैं खास तौर पर आज गौहर जदीद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी जो मेहनत है माशाल्लाह, जो कोशिश है वो आज रंग ला रही है। आपके जहां पैदा हुए वहां पर उन्होंने मिसाल कायम की, साथ साथ जब वो लंदन गए आज से 20 साल पहले, इत्तेफाक से मैं भी घूमने गया था तो पूरा यूरोप घूम के जब मैं लंदन में आया, पहले लंदन में उतरते पहले इनको और इनके और एक कजन भाई है बिलाल बोलकर, वो लोग को मेरा सामान आधा दे दिया। फिर मैं हमारी बेगम साहब दोनों मिलकर फिर हम यूरोप घूमने चले गए। वापसी में जब आए तो हम बोले भाई जरा हमारा सामान वापस कर दो, फिर हमारे को दुबई जाना है, फिर दो चार जगह जाना है। तो इन्होंने इनके भाई मेरे को पकड़ के नए नए सवाल ही पता नहीं होता, जब तक घर को नहीं आए नहीं जा सकते, सामान लाने मजबूरन मेरे को घर को जाना पड़ा, जबकि घर था छोटा, दिल इतना बड़ा। और जब भी और एक छोटे भाई मुजफ्फर भी जब भी आए थे, माशाल्लाह से हम लोग थे क्या खाते वो कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ दाल गोश्त रोटी और चावल होना बस, क्योंकि वहां वो टाइम पे ज्यादातर रोटला नहीं थी कोई भी यूरोप में। तो सिर्फ मेरी जिंदगी 15-20 दिन करीब मैं खाली बगर पे था, बगर से हटके वो भी फिलोटो फिश बगर खाते थे और वो चिप्स पे जिंदा थे बस, क्योंकि कोई चीज नहीं मिलती थी हलाल चीज, इसलिए हम उस पे मजबूर थे। लेकिन जब आए हम तो वहां पर हम दाल गोश्त ये लोग पूरे मिलके बनाए, फिर हमारे बेगम साहब भी हेल्प करके पता है ऐसा नहीं बड़ा 2-4 दिन हम वहां रहे। फिर वहां से निकल कर फिर मैं गौर में बोला आप किधर काम करते, चलो चलो मैं भी चलो देखता हूँ, बल्कि वहां पर गया। तकरीबन सर्दी में वो टाइम पे दिसंबर का महीना था, क्योंकि हद से ज्यादा सर्दी रहती वो टाइम पर, अकेला आदमी बैठा हुआ है तकरीबन 12-14 घंटे, कभी 18 घंटे, क्योंकि जो इनके ओनर साहब थे वो अब भी आ रहा हूँ बोल के 2-4 घंटे बैठे चले गए, नहीं तो फिर बंद करके चले आना पड़ता था।
तो तकरीबन 24 घंटे बैठ के काम करते थे। आज वो काम कर 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके खुद पास कितने की आज बच्चे काम कर रहे हैं, हैदराबाद के, यहाँ के, वहां के। ये माशाल्लाह जब तक इंसान काम नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ सकता। और खुद की मेहनत, हम कुछ भी काम करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे तो हमें रास्ता बताता अल्लाह ताला कि हम और हमारे साथ साथ किसकी मेहनत, अल्लाह से हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ हम दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ा सकते। आज तकरीबन 100 बच्चे आज इनके काम कर रहे हैं। ये अल्लाह का करम है। एक दूसरे मुल्क में जहां पर हम खुद नौकरी कर रहे थे आज 100 बच्चों को नौकरी दे रहे हैं। तो ये सोचिए वही बच्चे जाकर और वहां पर अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। तो उसके वास्ते आज ये जो जुड़ी ग्रुप आप यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट लगाए हैं, यहाँ के बच्चों को जो सहूलत है, वो टाइम पे तो कोई चीज की सहूलत नहीं थी। ये जो लोग जो मेहनत करे हैं वो सोच नहीं सकते, यानी ओढ़ने को, खाने को, हर चीज को तकलीफ थी। लेकिन आज यूरोप जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, हर होटल है, हर चीज हलाल हराम सब मिलता वहां पर। वो टाइम पर तो कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो टाइम पर आज मेहनत कर आज इतने आगे बढ़े हैं। तो मैं यहाँ से खास तौर पर नौजवानों से और यहाँ पे जितने भी बुजुर्गान हैं उनके माँ बाप के बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को मेहनत के साथ साथ दीनी और दुनियावी तालीम दिलाइए और उनको बताइए कि भाई आप काम करेंगे तो आपके साथ साथ आपके पीछे और किसी के साथ में दूसरों को भी मदद करेंगे। आप अगर से किसी की मदद करेंगे तो आप किसी और 10 जनों की मदद करने के अल्लाह ताला आपको काबिल बनाएगा और सबकी दुआ लगेगी। वो दुआ आपके साथ साथ आपके माँ बाप को मिलेगी। जो मरहूम है उनके दिलों को खुशी होती। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जितना हो सके यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट में आइए, अपने बच्चों को लाइए। और साथ साथ मैं मुजम्मिल रिजवान जो ऑस्ट्रेलिया से है, उन्होंने भी तकरीबन हैदराबाद के 3000 बच्चों के ऊपर उन्होंने वहां पर विजय सो है, ऑस्ट्रेलिया को बुलाए सो है, वहां पर भी गया था। मैं वहां पर भी घूमने गया था, तो वहां पूरा घूमा। तो उन्होंने भी सिडनी में मेरे को रुका लिए। मैंने अली भाई कैसे जाते हैं आप? अरे मैं बड़ा भाई मैं पूरा फिर के आ गया, न्यूजीलैंड ये पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। नहीं वहां पर बोल के सिडनी में मेरे को भी उन्होंने 2-4 दिन रुका लिए। वहां ले जाके उनका पूरा इंस्टीट्यूट, वहां का कॉलेज का पूरा कैसा सिस्टम रहता पूरा बताए। माशाल्लाह से देखिए ये लोग अपन जाकर मेहनत कर आज हजारों बच्चों को बुला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वही आज गौर में अभी आज हजारों बच्चों को इंशाल्लाह ताला आने वाले जितने भी नई नस्ल रहेंगी ये लोग को बुलाएंगे। ये बच्चे जाएंगे, मेहनत करेंगे, उससे उनके माँ बाप को और महल्ले वालों को हर एक को फायदा होगा। और साथ साथ हम ये सोच के चलिए कि हमारे इंडिया को तरक्की होगी, हमारे भारत को तरक्की होगी। इसके साथ मैं ज्यादा टाइम लेते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब शुक्रिया अदा करता हूँ, वो तारीफें हुई नहीं। Hello everyone. Actually, we have started a group of Judy Consultancy Overseas, Judy Overseas Educational Consultant. आज हम लोग की ओपनिंग थी 11 तारीख को, और हम लोग का जो प्रोजेक्ट है हम लोग ये देखने वाले हैं जो स्टूडेंट एस्पायरेंट्स होते हैं जो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू हम लोग जो भी यूनिवर्सिटी है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उनसे कोलैबोरेट करके उनका पाथवे बनाकर वहाँ पर भेजते हैं। है औरंगाबाद में और सारे दूसरे भी बहुत सारे कंसल्टेंसीज जो भेजते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटो ये है कि जब बच्चा पहुंचता है फॉर एग्जांपल यूके या फिर यूएसए या फिर कनाडा, तो वहां पर जाकर उसको तकलीफ होती है घर ढूंढने में, और उसके बाद उसको तकलीफ होती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहला बनाना है, दूसरी जॉब की, क्योंकि यूके यूएसए में उन लोग का क्राइटेरिया ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते जॉब करना है। तो हम लोग ये हमारा मोटो ये है कि जब बच्चा पहुंचता है तो वहां पर उसको तकलीफ ना हो, वहां पर उसको सर्विसेज मिले, और एक्चुअली यहाँ पर भी सर्विसेज मिलेंगी
और दूसरी बात यह है कि हम लोग ने यहाँ पे जो क्लासेस चालू करे इंग्लिश के, दैट इज IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, इन सभी की क्लासेस ली जाएंगी फिजिकली और ऑनलाइन। अगर कोई घर से बैठ के करना चाहता है तो घर पे कर सकते हैं, या फिर अगर फिजिकली लेना चाहता है तो फिजिकली कर सकते हैं। सर आपसे रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।